Good evening, everyone. At the outset, I would like to thank Sumit ji and the entire team of CASA for giving me this opportunity to express my learnings and thoughts on the topic. As Sumit ji said, the topic is very important because now the department has already started undertaking GST audits. And previously, we were getting assessment notices. Now we are also getting notices. Department has already started it, and in the times to come, this is certainly expected to grow. The frequency will grow. So that is why we need to understand what are the exposures that are there in the financial statements which the department can eye as liable to tax, and what our contention should be, whether each and every income credited to the P&L account, is it liable to tax or not. So that is all what we will be discussing. So I would share my PPT first. Sumiji, is it visible? Yes, Siddharth. And my voice is also perfectly audible? Perfect. Okay. So Perfect. first of all, we need to understand why the concept of audit is there. Dekhiye, in India, what all taxes we are subjected to, be it income tax under the Income Tax Act, or be it service tax or excise that were used to be there till 30th June 2017, and now the now introduced the indirect tax. All these taxes are self-assessment based. Section 59 of the CGST Act says that a registered person, a person who is registered under GST, has to self-assess his output tax liability, the taxes payable under the Act, as well as the input tax credit available to him, and furnish his return under Section 39, that is GST Act 3B. So, assessee, the taxpayer has to self-assess the output tax liability. Assess karna hai, but how does law ensure that a person is legitimately paying the taxes? How to protect the interest of revenue? So, for these reasons, the law has given power to the administrative authorities at different places under the law. There are three stages where the law has placed different type of procedures. First is under Chapter 12 of the CGST Act, that is assessments. So therein you have Section 61, scrutiny of returns, under which you are getting ASMT 10 notices. Then under Section 62, assessment of non-filers returns, those people who are registered but not filing returns. Then there is best judgment assessment of non-filers, unregistered person under Section 63. Then there is summary assessment, which is applicable in limited cases where the department has reasons to believe that if a particular demand is not confirmed upon a person very speedily, then he may abscond and it will be detrimental to the interest of revenue. So for that, Section 64 is there. Then we have the Chapter 13, which has two sections. Section 65, which is the department audit by tax authorities, which we commonly refer to as departmental audit. And then Section 66, special audit, which is undertaken by a chartered accountant nominated by the department. So the process is same. It's the difference is that a specialized professional is doing the department, but special audit is undertaken in cases of public sector undertakings like banks and large companies only, and not in every case. Majority, the department itself is undertaking the audits. Then if I were to tell the difference between assessment and audit is, assessment, the provisions under the assessment chapter are applicable for a limited aspect. So for scrutiny of return, they will just scrutinize the return. The department, the proper officer will just scrutinize the return. Whereas under audit, the scope is quite comprehensive. We will see when we will understand the definition of audit under the law, that how vast the scope is. They can examine each and every record, whether prepared under this act or any other law which is applicable to me, like under the Companies Act, like the financial statements I'm preparing. So they can examine each and everything. So the scope of audit is quite vast.
compared to assessments. And then there is chapter 14, which basically talks about inspections and seizure investigation, wherein the department has reasons to believe that a particular person is suppressing the transactions. He is secreting any goods which are liable to confiscation. So where the act by the taxpayer is basically having an element of fraudulent intention. So in those cases, department is having resort to chapter 14, wherein chapter 67 pertains to inspection, search and seizure and so on. So these are the basically the different types of powers which the department are having, including audit, which is the topic of the day, which is undertaken under section 65, and all the 12, 13 or 14, excluding certain specific cases, they have to culminate into demand and recovery, that is adjudication, which I will also introduce you at the end of my deliberation. So there is a procedure of adjudication wherein department has to serve me a show cause notice, and then only they can confirm the demand. So audit culminates into show cause notice and then adjudication. Without adjudication, without service of show cause notice, there is no purpose of audit. So this we will understand. Now, I have already explained you what is the need for departmental audit to protect the interest of revenue, and then it acts as a deterrent for dishonest taxpayer and encourages compliance by honest taxpayer. Now, the scope of audit by the department under section 65 has also enhanced. GSTR 9C हमारा खत्म कर दिया, which we used to undertake. GSTR 9C certification जो हम file करते थे for every year, we have filed last which we filed was 2021. So after there 2021 section 35(5) has been eliminated, and now the department going forward, the department will only be doing the audit. तो अब scope बढ़ जाता है, exposure बढ़ जाता है एक assessee का. Audit is not a new concept for us. We have been doing statutory audit under Companies Act, tax audit under Income Tax Act, and so on. But audit for the first time has been defined under the GST Act. So now this is very important to understand. To understand the scope of audit, Section 2, Clause 13 says that audit means the examination of, it is an exhaustive definition. So audit means the examination of records, returns, and other documents. Now, records can be any return record or a printed record or an electronic record even, which is there in your computer. They can examine that. They can examine the returns which have been furnished by you. That is GSTR 3B in case of regular taxpayers, GSTR 4 in case of composition taxpayers. Then records. Record can be books of account, agreements, and any other piece of paper which I am maintaining or furnishing under the GST law or under any other law which is applicable to me. So they can examine my records, returns, and documents. For what they will verify, for what they will examine, to verify the correctness of turnover declared. What turnover I have declared in my GSTR 1 and GSTR 3B. Whether I have legitimately paid the tax. So to verify the correctness of taxes paid. If any refund has been claimed by me, whether that is proper or not, as per the documents, as per the records, as per my books of account primarily. Then what input tax credit I have availed. Input tax credit की जब हम बात करते हैं, I will deal this in bit detail when we will be discussing the exposures and audit. Input tax credit, I would like to highlight that it is, or it would be better if I will deal it later only. So the proper officer basically will verify the correctness of input tax credit availed, and then whether I have complied with other provisions of the law or not. So audit is much comprehensive. The scope of audit is much comprehensive as compared to assessments. Now, all this is being done to ensure whether the tax has been paid or not, whether I have short paid the tax, whether I have
erroneously claimed any refund, or whether input tax credit has been wrongly availed by me. So for these things, the department undertakes the audit, and at last, whether in totality I have complied with the provisions of the law. Sometimes there cannot be any, it can be a case where there is no liability on me, but I am not properly maintaining the documents which are required to be maintained under section 35. So for those cases, there can be general penalty under section 125. So for all this, department undertakes the audit. Now, for next 20 minutes, I will be discussing the statutory provision in relation to audit, and then we will discuss the exposures. Now, section 65 subsection 1 says that commissioner or any officer authorized by him. So the power is vested with the commissioner and not any person subordinate to him, by way of a general or a specific order. So आप देख रहे होंगे कि आपके किसी अगर क्लाइंट के केस में ऑडिट इनिशिएट हुआ है तो डिपार्टमेंट ने एक ADT1 आपको सर्व किया है. So if that ADT1 can specifically relate to that client, or it can be general as well for n number of parties. So he may undertake an audit of a registered person. अब audit registered का ही हो सकता है. अगर person registered ही नहीं है but he was liable to be registered, तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास जो पावर है वो सेक्शन 63 में है, wherein they can do best judgment assessment of that unregistered person. But audit नहीं हो सकता है ऐसे आदमी का. Then for such period, at such frequency, in such manner as may be prescribed. So in rules they have prescribed the period as financial year or part thereof or multiples thereof. So आप जब भी देखेंगे generally department फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करता है और मल्टीपल्स देयर ऑफ, जैसे 17, 18, 18, 19 के पर्टिकुलरली आजकल ऑडिट इनिशिएट किए जा रहे हैं बाय द डिपार्टमेंट. नाउ सेक्शन 65 सबसेक्शन 2 सेज दैट section 65 subsection 2 says that officer can conduct the audit at the place of business of the registered person or at their own office. ऑडिट या तो किया जा सकता है, इट कैन बी इंस्टीट्यूटेड एट योर ओन प्लेस ऑफ बिजनेस विच यू हैव in your registration certificate, or even the department, you have the option to say that we will bring the documents at the office of the department and there the audit can be conducted. So both options are there, and the department asks you whether you want to conduct it at your own place or at our own office. Then subsection 3 talks about time limit for issuance of notice. Basically, whenever the department initiates audit, they have to serve you a notice in form ADT1 at least 15 days prior to initiation. तो डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस सर्व करना है और प्री इंटिमेशन है. In case of survey or search and seizure such procedures, there is no pre-intimation. पर ऑडिट के केस में आपको इंटिमेट किया जाएगा कि हम आपका ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं. तो वो उसके लिए जो फॉर्म है that is ADT1 and it will be served at least 15 days prior. Then section 65 for completion of audit. So the audit has to be completed within a period of 3 months from the date of commencement of audit. Now, the law has stipulated a time period. So it is a time-bound procedure, the audit under GST Act. So they say within a period of 3 months, it has to be completed. Now, if the commissioner is satisfied, the commissioner who gave the power to conduct the audit of that taxpayer, of that registered person, if he feels that audit cannot be concluded within such short time of 3 months, then he can give an extension to the department of 6 months, but not more than that. So in totality, department is having 9 months to conduct the audit. Commencement of audit. So 3 months from the commencement of audit, 9 months from the commencement of audit. So commencement of audit भी law में define कर दिया उन्होंने एक explanation के through, which says that audit shall be deemed to be commenced once you have made available the documents asked for by the department in ADT1 to the department. तो इसका मतलब कि अगर आपको डिपार्टमेंट ने ADT1 सर्व किया
और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए विद इन द आस्क्ड फॉर टाइम, तो आप टाइम एक्सटेंशन लेते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट 3 महीने में कंक्लूड ही होना है। जब तक आप डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट नहीं कर देते जो उन्होंने मांगे हैं, तब तक डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मानी जाएगी, ऑडिट कमेंस नहीं माना जाएगा। सो दिस से once the documents have been made available or actual institution of audit at your place of business, whichever is later, जो later position होगी वहां से date of commencement of audit मानी जाएगी। Then during the course of audit, this is basically the law says that as a registered person, as an auditee, I have to afford necessary facility to the officer conducting my audit to verify the books of account or other documents as he may require, and I have to furnish such information as he may require. मैं उसने जो मुझसे information मांगी है, which I am preparing under this law, like SENVAT register, like your books of account, financial statements. So whatever documents I am preparing, I have to furnish him, and I have to render him assistance for timely completion of audit. Then once the audit is concluded within the stipulated time, the department has to serve me findings of their audit. So during the course of audit, whenever department is basically observing my documents, if they have notice any discrepancy, they can inform me and I can submit my explanation there too. And at the end of audit, after considering my explanations, they will serve their final findings in form ADT2. They will serve me form ADT2, in which they will mention their findings, the reasons for their findings, and what are my rights and obligations. If I pay, basically if I agree, then I can pay along with interest. Sometimes department asks for 15% penalty as well, where they allege fraudulent intention under section 74, or they say that if you want to contest, then they will serve you a show cause notice. So इस तरीके से मेरे rights and obligations को वो बताते हैं। इसको मैं जब show cause notice adjudication को deal करूंगा तो आपको elaborate करूंगा। Then ultimately, so subsection 7 is the conclusion, which says that अगर डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है कोई नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट या रिफंड दैट हैज बीन क्लेम्ड एरेनियसली, जो आपको ड्यू नहीं था, या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस सर्व करेगा अंडर सेक्शन 73 और 74 एज द केस मे बी. सो व्हाट वी टेक आउट फ्रॉम दिस प्रोविजन इज, upon completion of the audit, the demand does not get confirmed. जो आपको ADT2 आएगा, जिसे हम ऑडिट मेमो भी कहते हैं, उसमें जो अमाउंट क्वांटिफाई की जाएगी बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट यू, दैट इज नॉट कंफर्मेशन ऑफ द डिमांड. द डिमांड will first be proposed by issuing a show cause notice, and then it will get confirmed once we submit the reply to the show cause notice and the concerned officer passes an order against that. So meaning thereby audit से confirm नहीं होती है. Department has to follow the procedure of adjudication, demand and recovery. Now we have to see what are the various types of exposures. In the times to come, department will be doing the audits. अब as professionals हमें ये समझना चाहिए कि जब डिपार्टमेंट मेरा ऑडिट कर रहा है, तो मैंने जनरली हमने प्रोफेशनल्स को देखा है, दे एक्सेप्ट व्हाट डिपार्टमेंट इज सेइंग, बट वी मस्ट एनालाइज एट द सेम टाइम whether he is saying is legal or not, whether we can contest it or not, whether the assertion of the department is as per the legal proposition or not. So we must जो कमिंग फॉरवर्ड स्लाइड्स हैं उसमें मैं कहीं एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगा which will help you when you will be assisting your client in doing the audits. अब अगर क्रेडिट साइड ऑफ P&L को देखें कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो P&L में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं, इसके बियॉन्ड तो डिपार्टमेंट का स्कोप नहीं है. सर्टेनली if you have not recorded any transaction in the financial statements but department comes to know about it, that is a different thing. But primarily जो books of account में P&L की credit side है,
या फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज P&L की डेबिट साइड है, या आपका फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है जिसमें आपने डिस्पोजल शो कर रखे हैं, तो वहीं से मेजरली डिपार्टमेंट चेक करता है दैट यू हैव लेजिटिमेटली पेड द टैक्सेस और नॉट। अब सबसे पहले बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाईज में क्रेडिट साइड ऑफ P&L, तो क्या इश्यूज आ सकते हैं? I have to see whether I have, if I am a supplier of goods, whether I have properly classified my supplies or not. In case of goods, due to mere change in ingredients of the product or composition of the product, the rate can change. So at the very first place, जब मैं सप्लाई कर रहा हूँ, टैक्स डिस्चार्ज कर रहा हूँ, मुझे ये असर्टेन करना है कि क्या मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स लाइक फ्रूटी, or like the appy juice which is based on apple, it is fruit juice based drink which is liable to tax at 12%. But in case of carbonated beverages of fruit drink like appy fizz, jahan pe wo carbonated hai, aerated hai, it tax is 28%, and in some cases cess is also leviable. So you have to see whether your classification is correct or not, otherwise at the time of audit the department can pose a problem. Then there can be a case whether you are whether your supply is a supply of goods or a supply of service. Someone is giving you content to print a book, giving it to him, whether it is a print service or you are selling the printed book. So the department has already issued a clarification in this regard, which one must go through while assessing the liability in case of printers, which says that agar content is significant, basically एक बुक का कंटेंट आप दे रहे हैं प्रिंटर को और वो केवल प्रिंट करके बाइंड करके एक बुक बना के दे रहा है आपको, तो दैट इज अ प्रिंटिंग सर्विस। वेयर एज अगर आप उसको एक लोगो दे रहे हैं अपनी कंपनी का और वो एक डायरी, उस पर वो लोगो एम्बॉस करके आपको सप्लाई कर रहा है, या एक एनवेलप आपको आपका कंपनी का नाम लिख के उसको सप्लाई कर रहा है, तो देन दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। So basically it depends on the significance of the content which is being given by the recipient. तो इस तरीके से हमें properly classify करना है अपनी supplies को। Then whether the supply I am undertaking, if an element of composite supply or mixed supply exists or not. अब in some cases audits have been done, ये देखा गया है, जैसे particularly एक issue emerge हो रहा है, though under service tax it was settled, but department sometimes unnecessarily want to create certain issues. तो ये particularly southern region of India में जहां पे hospitals medicine consume कर रहे हैं while providing healthcare service to the patient. So the patient is coming, patient is getting admitted, then patient is being treated, एंड अल्टीमेटली जब वो डिस्चार्ज होता है तो जो उसे जाता है उसमें मेडिसिन की वैल्यू सेपरेटली मेंशन होती है। सो द डिपार्टमेंट्स एलिगेशन इज दैट यू आर सप्लाइंग द मेडिसिन्स एंड मेडिसिन्स आर लायबल टू टैक्स। तो जो सर्विस जो प्रोसीजर के अगेंस्ट करी वो एग्जेम्प्ट है, बट मेडिसिन के अगेंस्ट जो अमाउंट चार्ज करी दैट इज लायबल टू टैक्स। बट दिस एलिगेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इन इटसेल्फ इज वेरी इनकरेक्ट। See, the patient who is coming to an hospital, he is coming to avail healthcare services. He is not coming to buy medicine. He can go to a chemist. He can go to a pharmacy. तो यहीं पे ये बातें समझने वाली हैं कि अगर आपके क्लाइंट को इस तरीके से कोई डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचता है, तो डिपार्टमेंट का हर एलिगेशन इज नॉट करेक्ट। So department has issued show cause notices in these cases, but certainly in the times to come before the courts that allegation will not sustain because it is a composite supply of healthcare service. Then again, as I said, rate of tax which is applicable on your supplies, you must be very basically considerate while determining the rate of tax which is applicable on your supply. For example, rate of transport vehicles, ट्रांसपोर्ट रेंट पे दे रहे हैं, विद ड्राइवर दे रहे हैं, रेट इज डिफरेंट, विदाउट ड्राइवर दे रहे हैं तो रेट इज डिफरेंट। सो यू नीड टू सी दोस रेट नोटिफिकेशंस वेरी केयरफुली। रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद ड्राइवर इज in that case also there is a bifurcation. If with fuel है तो 5%, without credit 12%, with credit, and without fuel है तो 18% with credit.
बट अगर आप विदाउट ड्राइवर दे रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, विच इज टैक्सेबल एट द सेम रेट एट विच सप्लाई ऑफ दैट कार इज टैक्सेबल. तो वहां पे 28% आ जाता है. सो दीज थिंग्स यू मस्ट बी वेरी कंसिडरेट ऑफ. देन एग्जेम्पशंस क्लेम, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहां पे एग्जेम्पशंस हैं आपको जीएसटी में, सो यू मस्ट, आपका जो क्लाइंट है, आपको ये जरूर देखना चाहिए. एक जजमेंट है which is a very recent judgment of Supreme Court of 2018, Dilip Kumar and Company. The judgment says that if a person is claiming an exemption under a notification, then the onus is on that person to prove that his case falls within the four corners of that exemption notification. If there is any ambiguity, it will go in favor of revenue. Dilip Kumar and Company. This judgment is there. So in that judgment, they have overruled was laid down 20 years in case of sun transport, wherein they said that if there is any ambiguity, that will go in favor of assessee, but that is not the case now. The person who is claiming the exemption has to prove that his case fall within the parameters of the exemption. So the exemption notification has to be interpreted strictly, what I intend to say. Now there is I would like to discuss ये query भी कई बार आती है, practical query है, renting of residential dwelling for use as residence exemption है. अब मैं किसी को अपनी residential dwelling एक hostel operator को rent पे देता हूँ, who is then giving it to the students for their residence, तो क्या यहाँ पे exemption मिलेगी या नहीं मिलेगी? In my humble opinion, exemption will be available because I am giving a residential dwelling on rent for residence. It uses residence only. So what we take out is exemption. When we are claiming, we need to be very cautious that our case falls within the four corners of the exemption. Then cross charge. This is again a concept under GST, very important concept, and it has been a very popular concept under GST, I would say. So let us say you are having an office in Delhi from where you are supplying goods. There is a company which is supplying goods from Delhi. It is entering into agreements from Delhi with all of its customers. But then it has opened some license offices in multiple states, which help the company in getting the orders. So the question arises whether these offices in other states, whether they're liable for registration or not. Certainly, they're not providing, they are not supplying any goods or services to the third party. But there can be an argument that they are supplying licensing services, business support services to this office in Delhi. And these establishments being deemed as distinct person under section 25(4), even without consideration, the supply is liable to tax. अब डिपार्टमेंट कह देगा कि एक किसी भी नोशनल बेसिस पे वो उस ऑफिस की डिमांड निकाल देगा. What your assertion can be, you must see second proviso to rule 28, which says in case where full credit is admissible. तो अगर वो जो establishment दूसरी स्टेट में लोकेटेड है, वो अगर दिल्ली ऑफिस को इन्वॉइस करती और दिल्ली ऑफिस को फुल क्रेडिट मिलता, तो second proviso to rule 28 says any value adopted in the invoice will be treated as open market value, meaning thereby even if you bill 5 rupees or 10 rupees nominal bill, this value would not be objected by the department. So in such cases we must take the benefit of second proviso to rule 28 अगर हमारे क्लाइंट ने ये क्रॉस चार्ज नहीं किया है in the previous periods. और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए वे फॉरवर्ड कि क्या हमें वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. हम इसी असर्शन पे लिटिगेट करेंगे मैटर को, या वहां पे उस ऑफिस लोकल ऑफिस पे कुछ सिग्निफिकेंट लोकल क्रेडिट्स हैं जिनको हम बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम वहां पे रजिस्ट्रेशन ले लें. So a cost benefit analysis can be done of obtaining the registration, doing the compliances, or of not obtaining the registration. Then there can be aspects of valuation. If you have made any supply, and let us say the consideration was also there in kind, so we have to see the valuation. We say that
the monetary consideration as well as the equivalent value of the non-monetary consideration has to be added to determine the value of supply. Then time of supply, whether basically time of supply is when I'm liable to pay the tax, when the tax becomes due. So in case of goods and services, there are different provisions. Section 12 and 13 talk about time of supply. But here what happens is basically हम tax तो pay कर देते हैं, but time of supply defer होने की वजह से या delay होने की वजह से interest implication आ जाती है. तो interest के cases में जहां पे भी department interest impose करता है, be it for the reason of time of supply, these are basically that if that. So is the voice perfectly audible? Mr. Harsh Dhingra is saying there is some issue in internet connection. If anyone can unmute and confirm me that it is clearly audible. Okay, so let me shut down my video and then the audio would get better, I guess. Now is it better? Now can I proceed? Okay. Wait for a second. Hello. Yeah, now is it okay? I've just switched my internet. So I've got a message that it is okay now. Okay, perfect. So I was discussing the outward supplies, what exposure can be there in case of outward supplies. So time interest implication, whenever department imposes any liability of interest, we must see कि क्या मैंने गवर्नमेंट को टैक्स डिले पे करके कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कॉज किया है. देखिए समटाइम्स द केसेस आर कि मैंने कैश लेजर में टैक्स पे कर दिया बट रिटर्न डिले फाइल करी, या मेरा क्रेडिट में सफिशिएंट बैलेंस है जिससे मैं टैक्स डिस्चार्ज कर सकता था बट रिटर्न डिले फाइल हुई. तो इस तरीके के केसेस में we must see the judgment of Pratibha Processors versus Union of India, which is the landmark judgment, and it says that interest, Supreme Court says that interest can only be imposed in cases where the government has been deprived of by an amount. तो जहां मेरा क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी टैक्स मेरा बैलेंस प्रेजेंट है, क्रेडिट इज एज गुड एज टैक्स पेड, मैंने अपने सप्लायर को टैक्स पे किया है तभी क्रेडिट लिया है. सो that and that tax has already been paid by my supplier to the government, so I have not caused any financial loss to the government merely by filing a delayed return. और अब तो उन्होंने सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में एक अमेंडमेंट भी करी, although I will not talk about the anomalies of that amendment, but amendment ये है कि अगर मैं रिटर्न लेट फाइल करता हूं तो जितना कैश लेजर में डेबिट कर रहा हूं केवल उसी कंपोनेंट पे इंटरेस्ट लगेगा. So we must see. And even talking about the debit in electronic cash ledger, अगर कैश लेजर में sufficient balance है बट फिर भी मैं रिटर्न लेट फाइल कर रहा हूं तो भी मेरे पे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, because if you see explanation to section 49 at the end, it very well says the moment I deposit the amount in cash ledger, it is deemed as credited to the account of exchequer. तो अगर मेरा कैश जमा हो गया कैश लेजर में, उसके बाद मुझ पे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए बिकॉज मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया और गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंच गया. इसके बाद जो 3B से मैं करूंगा वो केवल एक एप्रोप्रिएशन है, सो इंटरेस्ट कैन नॉट बी इम्पोज्ड. देन
while determining place of supply about my supply. अब यहाँ पे ना I have many a times come across situations as per professionals जहां जिस रेसिपिएंट का GSTIN है वो उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, या जहां सर्विस उनके हिसाब से परफॉर्म हो रही है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 10 and 11 of IGST Act is applicable in case of supply of goods, और 12 और 13 is applicable in case of supply of services. तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमें उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन करना है। बट इधर मैं एक और चीज आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा। सपोज आई हैव मेड अ सप्लाई, आई हैव पेड द टैक्स, और जब मैंने सप्लाई की मैंने माना कि ये लोकल सप्लाई है, लायबल टू CGST SGST, और बाद में मुझे ये पता चलता है कि नो इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, वेदर ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट या मैं सुओ मोटो या सर्टेन करता हूं, और इट इज वाइस वर्सा, मैंने पहले IGST पे कर दिया बट बाद में पता चलता है कि इस पे तो C और S लगना था। देन सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट, CGST एक्ट, इज एट योर रेस्क्यू। इट सेज कि इस तरीके के केसेस में आप गलत टैक्स, सही टैक्स को पे करेंगे और गलत टैक्स का रिफंड मिल जाएगा आपको विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द राइट टैक्स। तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट या पीनल इंप्लीकेशन नहीं है। तो ये सेक्शन 77 इज एट योर रेस्क्यू इन दोज केसेस। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि 2 years इलैप्स हो गए, मैं उसके बाद रिफंड अप्लाई कर रहा हूं। वैसे जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको टाइम लिमिट को अधीर करना चाहिए। जब आप सही टैक्स को पे कर रहे हैं उसके साथ ही साथ आप गलत टैक्स जो ऑलरेडी पे कर दिया वो रिफंड लें। बट स्टिल इन अ केस पार्टी पेड द लेजिटिमेट टैक्स बट फंड लेना भूल गए, 2 साल निकल गए, तो in those cases the assertion can be, it is already settled in previous laws that an amount which has been paid beyond the provisions of the law, जो गलत टैक्स आपने पे किया, that is beyond the provisions of the law, the government was not entitled to retain it. Article 265 of the Constitution of India says that government can collect and retain the tax only by the authority of law. अब मेरी सप्लाई इंटरस्टेट थी, मैंने CGST SGST पहले पे कर दिया, फिर IGST सही पे कर दिया, तो जो अमाउंट मैंने CGST SGST का रिफंड लेना है दैट इज नॉट टैक्स विच द गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन। तो अगर मेरी टाइम लिमिटेशन एक्सपायर भी होगी तब भी मुझे रिफंड मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज अ डिपॉजिट ऑन विच टाइम लिमिटेशन अंडर एनी लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। देयर आर ऑलरेडी सेटल्ड जजमेंट्स ऑन दिस। So this was the thing which I wanted to tell in this case, outward supplies. Then coming to next slide. Yes. This slide is also very important. कहीं ऐसे सिनारियोज हैं जहां पे मेरे P&L में एक इनकम लाइन आइटम है और डिपार्टमेंट कहता है इस पे टैक्स लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने किसी से गुड्स परचेज किए, आई हैड अ लाइबिलिटी टू पे टू दैट माय क्रेडिटर, बट किसी वजह से a part of the amount that does not claim, and after the expiry of time limitation I am writing off that creditor and I am creating an income in my P&L account. Whether I'll be liable to pay GST, you can answer in the chat box or even you can unmute whether I'll be liable to pay GST in these cases. Sundry creditors written off. So Sumit Nandaji says no sense, no supply. Further answers? Okay, so let me tell you. In such case, sundry creditors written off, there is no supply by me to that creditor. Once there is no supply, there cannot be any GST. वो अपने पैसे नहीं claim करने आया, that is a commercial transaction. I have created it an income under the Limitation Act. बट उसकी वजह से ये डायरेक्टली सप्लाई नहीं बन जाता। अब आई विल डिस्कस द नेक्स्ट लाइन आइटम दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस, और फिर मैं इस पे वापस आऊंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ पे कि डिपार्टमेंट क्या कहता है इन केसेस में। द नेक्स्ट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। 4 फीचर्स। हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है आपका क्लाइंट, फॉर एग्जांपल अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका क्लाइंट इज अ कॉन्ट्रैक्टी एंड ही हैज आस्क्ड अ कॉन्ट्रैक्टर to construct a building on his land.
Now there is an agreement to pay 1 crore for the construction services. तो कंस्ट्रक्शन की सप्लाई है, 1 करोड़ कंसिडरेशन है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस पर 18% जीएसटी लगाएगा विदाउट एनी डाउट. अब क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट there is a breach of clause by the contractor. Let's say he was liable to complete the contract within a period of 15 months, but 15 months have elapsed and he has not completed it. अब आप उस पे एक penalty impose करते हैं of, let us say, 5 lakhs. Now this penalty will come to your credit side of the P&L account. Now in that case, whether it will be liable to GST, whether this receipt of 5 lakhs will be liable to GST, Sumit Nanda ji or anyone else? Yes, no, same reason. देखिए, मैंने जो पेनल्टी चार्ज की है, दैट इज नॉट अ सप्लाई. मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक रेसिपिएंट था और सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर था. कॉन्ट्रैक्टर ने एक क्लॉज को ब्रीच किया और मैंने एक पेनल्टी इंपोज कर दी. एग्रीमेंट इसके लिए तो नहीं हुआ था कि मैं उस पर पेनल्टी इंपोज करूंगा. एग्रीमेंट हुआ था कि वो बिल्डिंग बनाएगा और मैं उसको 1 करोड़ की कंसिडरेशन पे करूंगा. सो इन दिस केस व्हाट डिपार्टमेंट सेज इज कि भाई आपने उसकी एक्ट को टॉलरेट किया है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है. बट क्या ये है सप्लाई ऑफ सर्विस? देखिए, यहां पे जो एज अ प्रोफेशनल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज मेयरली, क्योंकि शेड्यूल 2 में ये लिखा हुआ है कि agreeing to the obligation to tolerate an act or to do an act or to refrain from an act is a supply of service. वो सप्लाई नहीं बन जाती. सेक्शन 7(1) कैपिटल ए अगर आप पढ़ेंगे तो शेड्यूल 2 की जो केवल पावर है वो क्लासिफिकेशन की है कि वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस. ऑटोमेटिकली वो सप्लाई नहीं बन जाता अगर ये लाइन आइटम शेड्यूल 2 में है. तो फर्स्ट इट हैज टू क्वालिफाई एज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1) क्लॉज ए. Then only if it is a supply we have to see whether schedule 2 में वो goods है या service है. तो अगर मैं नॉन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट करता हूं अपने किसी एसोसिएट के साथ और मैं ये कहता हूं कि वो मेरे क्लाइंट्स के साथ एंगेज नहीं होगा एंड आई एम पेइंग हिम अ मनी, सो ही इज एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, टू नॉट टू डू एन एक्ट, ये तो सप्लाई है. बट जहां पे कॉन्ट्रैक्ट था कंस्ट्रक्शन के लिए और एक इंसिडेंटल कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर वो कोई क्लॉज को ब्रीच करेगा तो मैं उस पर पेनल्टी इंपोज करूंगा. इन दोनों ही सिचुएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. मैं इसको समझाना चाहूंगा एक ऐसे एग्जांपल से जो आपको डायरेक्टली हिट करेगा. एक लेमन ट्री प्रीमियर्स का जजमेंट है दिल्ली सी स्टार्ट का, जहां पे डिपार्टमेंट ने लेमन ट्री पे एक डिमांड प्रपोज करी ऑन कैंसिलेशन चार्जेस विच वर फोरफिटेड बाय द होटल. अब आप और मैं होटल की बुकिंग कराते हैं. इन केस ऑफ नो शो आप बुकिंग कराते हैं. आप किस लिए बुकिंग कराते हैं? कि आप होटल अकोमोडेशन की सर्विस लेंगे. होटल आपसे कंसिडरेशन चार्ज करता है फॉर प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन. नाउ इन केस ऑफ नो शो, आप गए नहीं तो होटल आपका एक अमाउंट फॉरफिट कर लेता है. तो क्या उसने होटल अकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड करी जिसके लिए पहले एग्रीमेंट किया गया था? नो. क्या ये फॉरफीचर को कंसिडरेशन माना जा सकता है? नो. तो लेमन ट्री प्रीमियर Delhi CSTAT Justice Dilip Gupta says that agreement was entered for providing hotel accommodation service for a consideration, but in case of no show there is no provision of service. You cannot treat it as agreeing to the toleration of an act. ये सर्विस टैक्स का जजमेंट है जहां पे डिक्लेयर्ड सर्विस होती थी agreeing to the obligation to tolerate an act. तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि जो ये अमाउंट आपने ली है that is a condition to a contract and not a consideration for a contract. Consideration for a contract was in lieu of hotel accommodation service, जो भी tariff rate agree हुआ था. But अगर cancellation है तो ये condition है and condition cannot be equated with consideration for a contract. इस judgment के बाद there are a series of judgments, Southeastern Coalfields, Delhi CSTAT, Ruchi Soya Industries, Delhi CSTAT. There is a judgment of High Court also, Bhai Mamubai, Maharashtra High Court. They have categorically stated that there is
a difference between condition to a contract and there is a difference between consideration for a contract. Contract किस चीज के लिए enter into किया गया, किस consideration के लिए, और एक जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लगी हुई है वो कंडीशन को आप प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं कह सकते, और जो अमाउंट उसके ल्यू में मिला है आपको, जो डैमेजेस आपने इंपोज किए हैं, जो पेनल्टी आपने इंपोज की है, या कोई अमाउंट फोरफिट किया है, परफॉर्मेंस गारंटी आपने इन कैश कराई है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, क्योंकि एग्रीमेंट उस चीज के लिए नहीं था. सो दैट इज हाउ वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. सिमिलरली सन्ट्री क्रेडिटर्स के केस में भी डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने उसका कोई एक्ट टॉलरेट किया होगा, इसलिए आपने अमाउंट फोरफिट कर लिया. तो डिपार्टमेंट इस तरीके की चीजें को नहीं मानता है, लेकिन हमें अपना सबमिशन देना चाहिए और आगे उसे कंटेस्ट करना चाहिए. देयर आर ऑलरेडी सेटल्ड जजमेंट्स, और ये जजमेंट्स इक्वली गुड रेशो होल्ड करते हैं अंडर जीएसटी. देयर इज नो सप्लाई. मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रेसिपिएंट था, अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि मैं सप्लायर बन गया क्योंकि ये कंडीशन की वजह से मैंने उस पर एक डैमेज इंपोज किया. दैट कैन नॉट बी द केस. दैट इज नॉट द ट्रू लीगल प्रोपोजिशन एज हेल्ड बाय द कोर्ट्स. Then there is again very interesting aspect of notice pay recovery. ये तो कई कंपनीज में होता है. notice pay recovery हुई, whether it is liable to GST. So whether there was any agreement कि हाँ भाई एम्प्लॉय नोटिस पे सर्व करके नहीं जाएगा और मैं इतनी अमाउंट उससे चार्ज करूंगा. एग्रीमेंट इसके लिए नहीं हुआ था. एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जब हुआ था तो वो इसके लिए हुआ था कि एम्प्लॉय सर्व करेगा और उसे इतनी सैलरी मिलेगी. बट देयर वाज अ कंडीशन कि अगर वो नोटिस पे सर्व करके नहीं जाएगा तो हम उससे इतने पैसे रिकवर करेंगे. तो दैट कैन नॉट बी अ सप्लाई. द एम्प्लॉयर हैज फैसिलिटेटेड द सडन एग्जिट ऑफ द एम्प्लॉय, और जो उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, एक नए एम्प्लॉय को हायर करना पड़ा, फटाफट उसको ट्रेन करना पड़ा, इसके लिए उसने कंपनसेशन ली है. दिस कंपनसेशन कैन नॉट बी सेड टू बी अ कंसिडरेशन फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय. ना तो सप्लायर रेसिपिएंट रिलेशनशिप है और ना ही ये नोटिस पे की रिकवरी एक कंसिडरेशन है. इट इज मेयरली अ कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अ कंडीशन अंडर एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. सो GETND Madras High Court says this. So while consulting your clients about whether notice pay recovery is liable to tax or not, you must take care of this judgment. Then कई बार हमने देखा है डिपार्टमेंट क्या होता है कि जब मैटर टाइम बारिंग हो रहा होता है, उसको शो कॉज नोटिस इशू करना है, ऑडिट आपका लास्ट पीरियड में कंडक्ट हो रहा है. मैं टाइमलाइंस को डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ माय डेलिब्रेशन कि 17-18 का ऑडिट वो कब तक कर सकते हैं या उसका शो कॉज कब तक कर सकते हैं. तो मान लीजिए कि 2024-25 चल रहा है और डिपार्टमेंट आपका इन हेस्ट ऑडिट कर रहा है. अब उसने आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, उसने केवल ये देखा कि आपकी बैलेंस शीट में तो टर्नओवर आ रहा है 10 करोड़ रुपए और जीएसटी रिटर्न्स में 8 करोड़ रुपए, तो वो 2 करोड़ पे टैक्स प्रपोज कर देते हैं. सर्विस टैक्स में बहुत होता है. बट वेदर सच शो कॉज नोटिस कैन सस्टेन? नो. There are number of judgments. One very prominent judgment of MP Ladhu by Delhi CSTAT, which says unless and until department is able to establish what supply has been made, what service has been provided, क्योंकि ये service tax regime का judgment है, and who was the service recipient, and how that difference pertains to provision of service, how that difference is a consideration for provision of service. अगर department show cause में ये चीजें establish नहीं करता है तो that show cause notice cannot sustain, meaning thereby आप केवल difference in books of account and return देख करके कोई डिमांड प्रपोज नहीं कर सकते. You have to give a basis कि ये सप्लाई की गई है by the concerned person और ये सप्लाई रेसिपिएंट था, and this was the consideration. Then foreign exchange fluctuation gains जो हमारी इनकम साइड में क्रेडिटेड होते हैं, they are not a supply, they are not in lieu of any supply. So then cannot be subjected to GST. Then GSTR 1 versus 3B, जब हमारा ऑडिट हो रहा है तो डिपार्टमेंट ये 2A 3B जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे 1 versus 3B, इसको काफी नोटिस कर रहा है क्योंकि वो अपेरेंट है. अगर आपकी 1 में कोई डिमांड आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर की हुई है, 3B में पे की है नहीं की है, तो डिपार्टमेंट फटाफट से उसको आपको डिस्क्रिपेंसी मेंशन करता है, या उससे पहले हो सकता है कि आपको ASMT टर्न भी सर्व हुआ हो, तो उसमें आपको अपनी फैक्चुअल प्रोपोजिशन को सबमिट करना है कि ये गलती है और दिस एंड दैट. बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है 1 जनवरी 22 से there is an explanation to section inserted to section 75 subsection 12 which says
कि अगर आपने जीएसटीआर 1 में कोई लायबिलिटी डिक्लेयर की है, देन इट कैन बी डायरेक्टली रिकवर्ड फ्रॉम यू विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ एजुकेशन। ना तो डिपार्टमेंट शो कॉज सर्व करेगा, ना कोई डिमांड कंफर्म करेगा, इट इज लायबल फॉर डायरेक्ट रिकवरी। बट देयर इज एन एडवाइजरी बाय द डिपार्टमेंट ऑल्सो कि जहां पे इनएडवर्टेंट मिस्टेक है, आपकी लायबिलिटी 10 लाख थी, आपने एक जीरो ज्यादा लगा दिया आपके अकाउंटेंट ने और 1 करोड़ फर्निश कर दिया, तो वहां पे डायरेक्ट रिकवरी नहीं हो सकती। आपको वो सब्सटैंशिएट करना होगा अपने रिकॉर्ड से, अपने इनवॉइसेस से, अपने एग्रीमेंट से कि इतनी तो मेरी इस पीरियड की सप्लाई है ही नहीं। देन अब आते हैं डेबिट साइड ऑफ पी&एल। हमने क्रेडिट साइड ऑफ पी&एल के कुछ एस्पेक्ट्स को समझा। अगर डेबिट साइड ऑफ पी&एल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट की एलिजिबिलिटी। अब मैं अगर कोई क्रेडिट ले रहा हूं तो आई हैव टू सेटिस्फाई, I am satisfying section 16 subsection 1, that is the concerned goods or services have been availed by me in the course or furtherance of my business. Then I have to satisfy section 16(2) जिसमें 4 conditions हैं, that I have received the supply of goods or services, I am in possession of the tax invoice, my supplier has made the payment of tax to the government, and fourth one is I have furnished my GSTR 3B return as a recipient. अब यहां पे 4 में से 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि फोर्थ कंडीशन जहां पे सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पर पे करने की, अगर वो भी सेटिस्फाइड है, आप अपने सप्लायर से टच में हैं और वो एक सर्टिफिकेट देने को तैयार है कि उसने टैक्स पे कर दिया है जो आपसे कंसर्न इनवॉइस में चार्ज किया, तो इन दोज केसेस वेदर डिपार्टमेंट कैन से कि भाई आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा। In such cases, we must legally respond to the department. हमें उनकी assertion को accept नहीं करना है, credit reverse नहीं करना है। As a professional, our responsibility to protect the interest of our client, जिसने अपने सप्लायर को टैक्स पे दिया है, सप्लायर जेन्युइनली रिसीव्ड है, मैं यहाँ पे फेक इनवॉइसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सारी चीजें जेन्युइन है, सारी चीजें अंडर बोनाफाइड इंप्रेशन है, बट 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा। तो देखिए अब इसमें आपको रिप्लाई कैसे करना है। आपको पहले सेक्शन 16(1) सबमिट करना है कि सेटिस्फाइड है, सेक्शन 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाइड है, माय सप्लायर इज गिविंग मी अ सर्टिफिकेट और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज गिवन मी अ सर्टिफिकेट कि भाई टैक्स पेड है। अब देयर कैन बी प्रोसीजरल लैप्सेस ऑन पार्ट ऑफ माय सप्लायर व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न, जैसे उसने जीएसटीएन गलत मेंशन कर दिया या B2B को B2C में रिपोर्ट कर दिया, या टैक्स इनवॉइस नंबर गलत है, वैल्यू गलत है, इस तरीके की वजह से मेरे 2A में वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा। सो देयर आर सेटल्ड जजमेंट्स दैट ऑन फॉल्ट ऑफ माय सप्लायर आई कैन नॉट बी डिनाइड द क्रेडिट। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। Then you must submit that there is no provision under the law. देखिए 31 मार्च 2021 तक तो लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है जहां पे क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट किया जाए टू दी एक्सटेंट ऑफ GSTR 2A और 2B। लॉ में कोई भी प्रोविजन नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि सर रूल 36(4) है, तो रूल 36(4) की जो स्टैट्यूटरी बैकिंग लॉ में जिस सेक्शन में थी, दैट सेक्शन नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे, इट नेवर गॉट नोटिफाइड। तो आपको यही सबमिट करना है कि अगर आपका पीरियड 31 मार्च 2021 से पहले का है, सॉरी 31 दिसंबर 2021 से रिलेटेड है, इसके बाद का जो है वो मैं आपको बताऊंगा, 31 दिसंबर 2021 तक अगर आपके पास ये डिपार्टमेंट कहता है, चाहे ASMT 10 नोटिस में या ऑडिट के दौरान जो डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई 2A में क्रेडिट नहीं शो हो रहा इसलिए मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, तो आपको ये सबमिट करना है दैट देयर इज नो लीगल प्रोविजन व्हिच मैंडेट्स द ऑटो पॉपुलेशन ऑफ क्रेडिट इन 2A 2B फॉर क्लेम ऑफ क्रेडिट, and whatever statutory conditions have been prescribed under the law under section 16, I have satisfied that. तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है, केवल एक प्रोसीजरल लैप्स की वजह से मेरा क्रेडिट नहीं डिनाई होना चाहिए। अब इसमें आपको स्ट्रॉन्ग रिलायंस प्लेस करना है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारती एयरटेल। ये केस लॉ सबने पढ़ा होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट, ये था तो एयरटेल के अगेंस्ट, SSC के अगेंस्ट, बट इसमें जो रेशो ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, that must be taken benefit of. What Supreme Court says very beautifully, Supreme Court says that a person has to self-assess his output tax liability. A person has to self-assess his input tax credit. And primary documents on the basis of which input tax credit has to be ascertained. If this is very important, if someone can again confirm me, the voice is clearly audible.
then I will proceed. That's audible, very well audible. Okay, great. So the Supreme Court says that the primary documents on the basis of which one has to self-assess his input tax credit are the agreements entered into between the parties, the invoice, the books of account. These are the three primary elements for claiming input tax credit, and on those basis the person can claim the credit. The portal, the GSTN portal, is merely a facilitation tool to retrieve or feed the information on the basis of which it cannot be said that credit is available or not available. Meaning thereby पोर्टल एक फैसिलिटेशन टूल है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, रिट्रीव की जा रही है. बट जो एज अ टैक्स पेयर अंडर द लॉ मेरे को जो सेल्फ असेस करना है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने एंटर इनटू किए हैं विद द पार्टीज लाइक टैक्स इनवॉइस और अपना एग्रीमेंट, उसके बेसिस पे सेल्फ असेस करना है. तो यू हैव टू प्लेस स्ट्रॉन्ग रिलायंस व्हाइल रिप्लाइंग टू द डिपार्टमेंट इन केस डिपार्टमेंट सेज कि भाई 2A में क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है. Then you have to take reliance of another judgment of D.Y. Bethel, Madras High Court, which says without undertaking any inquiry on the supplier, you cannot deny me the credit. You cannot directly ask the recipient to reverse the credit without undertaking any inquiry on the supplier. तो ये भी आप सबमिट करें और कहें कि अगर वो कोई इंक्वायरी की है आपने और उसमें कोई उसने स्टेटमेंट दी है तो मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दे. हालांकि जहां पे बोनाफाइड केसेस है वहां पे उसकी स्टेटमेंट यही होगी कि आई हैव पेड दी टैक्स, मुझसे गलती हुई है. तो इसको आपको जजमेंट को रिलायंस प्लेस करना है. नेक्स्ट, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स नॉन कॉगेट इम्पॉसिबला. इसको आपको बहुत एम्फसाइज करना है. The doctrine says that you cannot expect an assessee to do an impossible task. अब आप क्या इंश्योर चाह रहे हैं कि मैं सप्लाई भी लूं, मेरे पास इनवॉइस भी हो, मैं रिटर्न भी फाइल करूं, मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरे सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास, वो कह रहा है. अब क्या मैं ये भी इंश्योर करूं कि वो अपनी रिटर्न ठीक से फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है? सो दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क. सो लेक्स नॉन कॉगेट इम्पॉसिबल सेज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन असेसी टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क. दिस डॉक्ट्रिन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे सबमिशंस हैं जहां पे आपको कहना है कि स्टैट्यूटरी कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है फॉर क्लेम ऑफ क्रेडिट. सेक्शन 16, सेक्शन 17(5) का कोई क्रेडिट नहीं है. भारतीय एयरटेल सेज कि मैं क्रेडिट ले सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट and portal is merely a facilitation tool. Doctrine of lex non cogit impossibila says you cannot expect an assessee to do an impossible task. And then D.Y. Bethel. तो इस तरीके से आपने अपने रिप्लाई को फ्रेम करना है टू काउंटर कि केवल 2A में ऑटो पॉपुलेट होने से मेरा क्रेडिट नहीं डिनाई हो सकता. देयर इज अ प्रोसीजरल लैप्स एंड दैट टू पार्ट ऑफ माय सप्लायर. And on the basis of this procedural lapse, I cannot be denied a substantive right. Eicher Motors versus Union of India Supreme Court says credit is a vested right. And you cannot deny that vested right merely due to a procedural lapse to an SAC. अब एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं कि जहां पे सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया, आपको पता है वो भाग गया आपका पैसा लेकर के, तो वहां पे देखिए ट्रिब्यूनल तो बाउंड है लॉ से, बट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर कम टू रेस्क्यू. अराइज इंडिया, ऑनक्वेस्ट मर्केंडाइजिंग, ये सारे ऐसे केसेस हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे जहां पे एक पर्सन ने बोनाफाइड परचेज की हुई है, उसने गुड्स रिसीव किए हैं, डिपार्टमेंट का कोई एलिगेशन नहीं है कि इसकी, मतलब डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश नहीं कर पाया कि इसकी कोई कनाइवेंस है सप्लायर के साथ. तो हाई कोर्ट ये कहता है, दिल्ली हाई कोर्ट, कि इस तरीके के केसेस में जहां पे बोनाफाइड इंप्रेशन में परचेज की गई है, आप बायर को क्रेडिट नहीं डिनाई कर सकते मेयरली बिकॉज द सप्लायर हैज फ्लीड, he has absconded and he has not paid the VAT to you. Just because you are not able to catch hold the supplier, you cannot deny the credit to the bona fide buyer. Either you prove that there is connivance between the two parties, but until you cannot establish that, the bona fide buyer cannot be denied the credit. This has been held by Delhi High Court. This department went before Supreme Court in an appeal against this judgment, and Supreme Court has summarily dismissed this appeal. So
although summarily dismissed, so it does not become law. Article 141 says that order of the Supreme Court is binding on all the subordinate courts, but it is so only when it is discussed in detail. But Supreme Court did not bother to discuss in detail, and it upheld the order of the High Court. So you must submit in those cases where tax has not been paid. You have the rescue of Arise India. See, I understand wherein small cases are there, wherein small amounts are there, you cannot expect everyone to go before the High Court, fight till High Court. But I am not talking about those cases where the amount is significant, where the assessee, your client, is aggrieved that I have made all the purchases genuinely, but that supplier has is absconding. He has not paid the tax. He has defrauded. So what can I do? So in those cases, the judgments, the legal judiciary is in your favor. Then अब बात करें 1 जनवरी 2022 की. 1 जनवरी 2022 के बाद से क्या हुआ? ये सेक्शन 16(2) ले आए. एक और कंडीशन डाल दी कि सप्लायर के द्वारा इनवॉइस अपलोडेड होना चाहिए ऑन द पोर्टल और वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए टू दी रेसिपिएंट. कम्युनिकेट कैसे होगा? GSTR 2B में. तो ये कंडीशन तो ये ले आए हैं, बट एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कम टू रेस्क्यू व्हेन देयर इज अ केस ऑफ बोनाफाइड परचेज. तो जहां पे बायर ने अंडर बोनाफाइड इंप्रेशन, कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है और पर जेन्युइनली परचेज की है, गुड्स रिसीव किए हैं, इनवॉइस उसके पास है, बट सप्लायर ने फ्रॉड किया है डिपार्टमेंट के साथ, तो उन केसेस में वी कैन फाइट टिल द हाई कोर्ट और वी कैन डायरेक्टली नॉक द डोर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर रिट पिटिशन. But that maintainability of the writ is always has to be seen. So if I say आप ड्यू प्रोसीजर से आप अपील करते हुए ट्रिब्यूनल अगर रिलीफ नहीं देता है और आप हाई कोर्ट जाते हैं, तो देन you will get the relief at least from the high court. Then time limit under section 16(4). So right now the time is 6:15. I will try to basically complete this audit aspect. Adjudication मैं brief में तभी discuss करूंगा अगर queries नहीं होंगी, but certainly I would like to take queries from 6:30 to 7 because that is more important. So then so I have just 15 minutes. I will finish the concept of audit. Time limit under section 16(4). अब ये क्वेश्चन आता है whether it is applicable in case of RCM or not. So in my humble opinion, अगर आप RCM 17-18 का आज भी पे कर रहे हैं तो आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा एंड इट शुड नॉट बी डिनाइड. बेसिकली RCM का क्रेडिट हमें मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, तो उस केस में सेक्शन 16(4) की कंडीशन नहीं अप्लाई होनी चाहिए. Then we always have to see if we are availing any blocked credit. अब ब्लॉक क्रेडिट में अगर बात करें कंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लें 17(5)(c) ब्लॉक करता है, चाहे आप गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली लें तो 17(5)(d) ब्लॉक करता है. अनलेस आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है, आप खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर नहीं है या आप खुद बिल्डर नहीं है, तो क्रेडिट आपको नहीं मिलता. तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडेड है, तो वेदर लिफ्ट इज अ प्लांट एंड मशीनरी, वेदर एस्केलेटर इज अ प्लांट एंड मशीनरी. सी प्रिंसिपली अगर आप अपने ऑफिस की बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो लिफ्ट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, एस्केलेटर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. तो आप ये नहीं कह सकते कि वो प्लांट एंड मशीनरी है, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन डिफाइंड एज एनी इक्विपमेंट, अपरेटस और मशीनरी which is used for making outward supply of goods or services. So in my view it would be difficult, though it will only be settled by the courts in the times to come, but in lifts, escalators cannot be held to as plant and machinery. उनका credit literal interpretation of 17(5) में deny होगा. But यहाँ पे while I am saying this, we all know Odisha High Court judgment of Safari Retreats, where in that case the person had constructed a mall and was giving it on lease to the tenants. वहां पे क्वेश्चन आया कि उसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने रिलायंस लिया मेमोरेंडम ऑफ लॉ पे कि ये लॉ किस लिए आया था, टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टू इंप्लीमेंट स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट.
तो उन्होंने 17(5)(c) और D को प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन को रीड डाउन किया, अल्ट्रा वायरस नहीं डिक्लेयर किया, रीड डाउन किया कि जहां पे प्रॉपर्टी बनाई ही इसलिए जा रही है कि वो डायरेक्टली यूज होगी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग रेवेन्यू, मतलब लेट आउट होगी, और उस पे आप जीएसटी दैट पर्सन इज पेइंग, तो क्रेडिट अलाउ होना चाहिए. व्हेन यू आर गिविंग द क्रेडिट टू अ बिल्डर हु इज कंस्ट्रक्टिंग एंड सेलिंग, then why you are creating विपिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या अपना आप माइक म्यूट कर दें? हाँ, माइक म्यूट कर देता हूँ सर, सॉरी. हाँ जी, नो प्रॉब्लम. अरे यार, we were this safari retreat. So safari retreat says that when this person is letting out, so why you are creating a discrimination between a person who is constructing and selling that building? बिल्डर को तो क्रेडिट अवेलेबल है कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाएगा तो, लेकिन आप जो आदमी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना करके लेट आउट कर रहा है, आप उसको क्रेडिट नहीं देना चाह रहे. सो यू आर क्रिएटिंग एन आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन. तो इनइक्वालिटी है. इस बेसिस पे उन्होंने सफारी रिट्रीट्स को उड़ीसा हाईकोर्ट में ने क्रेडिट अलाउ किया. अब उड़ीसा हाईकोर्ट ने अलाउ किया, बाइंडिंग है उड़ीसा की जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज पे. पर हमें इन केसेस में क्या करना चाहिए? अगर हमारा क्लाइंट फॉर दैट मैटर एक होटल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या एक मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या एक थिएटर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इस तरीके की बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जो कि यूज ही डायरेक्टली होंगी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग टैक्सेबल रेवेन्यू, इन केसेस में वी मस्ट एडवाइज आवर क्लाइंट्स टू अवेल द क्रेडिट बट नॉट यूटिलाइज इट. देखिए, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है. डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी फाइल्ड एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है जजमेंट के ऑपरेशन पे. नाउ इट विल बी डिसाइडेड इन द टाइम्स टू कम. तो अगर आप क्रेडिट अवेल कर लेते हैं आज की डेट में और यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो कोई एडवर्स इंप्लीकेशन नहीं है. अगर सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में आएगा तो आपको क्रेडिट एडमिसिबल है. अगर अगेंस्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट को ओवर रूल कर दिया, तो आप वो क्रेडिट रिवर्स कर सकते हैं. एंड क्रेडिट अवेल्ड and reversed without utilization, no interest, no penalty. अब तो लॉ में ही उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2022 में ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट प्रपोज कर दी है, जहां पे इंटरेस्ट तभी लग सकता है क्रेडिट पे जब अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है. विदाउट यूटिलाइज्ड नो इंटरेस्ट. तो in the same line, you must avail the credit, you must advise your client to avail the credit but not utilize it. And being an interpretational issue, इस पे कभी पेनल्टी भी नहीं लग सकती. So that is what I want to emphasize upon in credits. Then again, gifts versus promotional strategies. Gifts का credit denied है. अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करके without any condition उसे गिफ्ट दे देते हैं आगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ डीलर ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, और आप स्टॉक में से एक आइटम अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर देते हैं उसके बर्थडे पे, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है. बट क्वेश्चन ये आता है, डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट्स एंड प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज. इस पे सीबीआईसी के सर्कुलर भी हैं, बाय वन गेट वन, और इफ यू बाय 2 shirts यू गेट 1 shirt फ्री. क्या ये गिफ्ट है? नो, इट इज नॉट अ गिफ्ट, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द कंडीशन कि आप अगर एक खरीदेंगे तो दूसरा मिलेगा. सो इट इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. यू आर गिविंग 2 एट द प्राइस ऑफ 1. तो इन केसेस में आपको क्रेडिट सर्टेनली मिलेगा. दीज आर नॉट गिफ्ट्स. Then department also observes whether you have properly done reversal under section 17(2) read with 3. So rule 42-43 का रिवर्सल बेसिकली, अगर आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी हैं या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी आप अंडरटेक कर रहे हैं, तो आपके जो गुड्स और इनपुट सर्विसेज आपने क्लेम किए हैं या कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लिया है, वो आपने प्रोपोर्शनली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स रिवर्स किया है या नहीं किया है. 2A 2B वर्सेस 3B, इसको मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सो आई विल नॉट डिस्कस इट अगेन. Then interest on ITC availed but utilized, this I have also discussed with you. Now next slide would be additions, deletions and fixed asset register. So if there is a disposal, अब डेबिट क्रेडिट साइड P&L की तो हो गई, इसके अलावा क्या और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसपे जो टैक्सेबल है? तो डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या जो आपके फिक्स्ड एसेट शेड्यूल रजिस्टर में आते हैं. अब तो देखिए, डिस्पोजल ऑफ असेट्स जो कि कैपिटलाइज्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हमें सेक्शन 18(5) जरूर पढ़ना चाहिए, विच सेज कि अगर आप कोई कैपिटल गुड डिस्पोज ऑफ करते हैं, आप उसको सप्लाई करते हैं, तो आपको टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और आईटीसी जो आपने क्लेम किया था एज रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर,
मतलब कि अगर आपने उस कैपिटल गुड्स को 2 साल यूज किया तो 40% तो आपको क्रेडिट मिल गया। अब जो 60% क्रेडिट है वो, या टैक्स जो उसकी कंसिडरेशन पे अप्लाई होना है वो, विच एवर इज हायर, आपको वो पे करना है। केवल आप 1 करोड़ की मशीनरी ले आए, 18 लाख रुपए उस पर क्रेडिट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख ले लिया, लेट अस अज्यूम, और आपने 2 साल यूज करी, अब आप उसको 10 लाख का बेच करके 1,80,000 रुपए टैक्स में नहीं, डिपार्टमेंट से मतलब बेसिकली नहीं आप निकल सकते। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने 20 लाख रुपए क्रेडिट लिया था, 2 साल मशीन यूज करी, उन्होंने कहा 40% क्रेडिट मिलेगा आपको एज पर सेक्शन 18(5), 60% आपको रिड्यूस रिवर्स करना है, तो मीनिंग देयर बाय 12 लाख आपको रिवर्स करना है। आपको टैक्सेबल कंसिडरेशन पे जो टैक्स बन रहा है वो नहीं पे करना, आपको क्रेडिट रिवर्स करना है फिर दिन दैट। देन सेल ऑफ मोटर व्हीकल, अब दिस इज अगेन कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन 8/18। गाड़ी हम सेल करते हैं जिसपे हमने क्रेडिट नहीं लिया हुआ, नॉर्मल एसेसरीज को क्रेडिट नहीं मिलता गाड़ी का, अब जब इसको सेल करते हैं तो टैक्स पे करना है। तो उस केस में नोटिफिकेशन कम्स टू रेस्क्यू विच सेज दैट अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो आपकी गाड़ी की WDV है, अगर उससे ज्यादा पे अपनी कार को सेल कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना है मार्जिन पे। और छोटी गाड़ी के केस में 12% है, बड़ी गाड़ी के केस में 18% है। वो उन्होंने इंजन डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे डिफाइन कर रखा है। 1200 सीसी इन केस ऑफ पेट्रोल, 1500 सीसी इन केस ऑफ डीजल। अगर इससे ऊपर की गाड़ी है या SUV है तो 18%, और अगर इससे नीचे के ग्रेड की गाड़ी है तो 12%। बट ये कई लोगों से हम देखते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब हम करते हैं तो वो रह जाता है, गाड़ी पे टैक्स नहीं दिया होता क्योंकि क्रेडिट भी क्लेम नहीं किया था, लेकिन आपने डिप्रिसिएशन तो ली थी, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रखा है उस मोटर व्हीकल को, तो आपको सेल पे टैक्स देना पड़ेगा। देन रेनोवेशंस ऑल्टरेशंस टू बिल्डिंग, वो हमने डिस्कस किया कि अगर आप अपनी बिल्डिंग में कोई रेनोवेशन ऑल्टरेशन कराते हैं तो टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन आपको क्रेडिट नहीं मिलता, बट हाँ अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है तो आपको क्रेडिट मिलता है उस केस में, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम 17(5). देन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब क्या होता है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आउटफ्लो इन फॉरेन करेंसी आ रहा है, तो इसका मतलब आपने किसी फॉरेन पार्टी को पेमेंट की है, हो सकता है वो पेमेंट इन ल्यू ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस की हो, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो उस पर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी। अब मैं रिवर्स चार्ज को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आई विल टेक 5 मिनट्स ऑन रिवर्स चार्ज। देखिए रिवर्स चार्ज में जब भी हमारी अगर कोई डिमांड आती है तो हमें ये देखना है, अगर नहीं पे करी तो या तो आप, एक सिचुएशन है कि आप आज पे कर दें, उसका क्रेडिट ले लें, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये इतनी ह्यूज लाइबिलिटी है कि मैं आज की डेट में पे करूंगा तो इसको अगले 2-3 साल में भी मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा, या डिपार्टमेंट ऐसी एक सिचुएशन है जहां पे 5 इयर्स डाउन द लाइन जब ऑडिट कर रहा है तब असरटेन कर रहा है कि भाई आपको RCM में टैक्स देना था पर आपने नहीं पे किया, तो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन यू आर हैविंग। देयर इज अ जजमेंट इन द केस ऑफ जेट एयरवेज सीस्टैट मुंबई, subsequently affirmed by Supreme Court, wherein they say that if the liability is of reverse charge and the credit was admissible, then though in those cases the demand cannot be confirmed, because that person if would have paid the tax under RCM he would have been entitled for credit. कैसे इसको अगर डिस्कस करें तो मेरी अगर 1 लाख रुपए की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी, मान लीजिए 2017-18 में, मेरा 20,000 का बाकी क्रेडिट था जो मैंने अपनी गुड्स और सर्विसेज पे मेरे को मिलना था, तो मैंने 80,000 कैश में पे करना था। मेरी RCM की लाइबिलिटी, मैंने मान लीजिए एडवोकेट से उस पीरियड में सर्विस ली थी, तो वो मेरी जो लाइबिलिटी थी वो 30,000 रुपीज की थी जो मैंने नहीं पे की, आज डिपार्टमेंट कह रहा है पे करो। अगर मैं इस अमाउंट को 30,000 को उस टाइम पे करता, कैश में पे करता, और वो 30,000 मेरा क्रेडिट में ऐड बैक हो जाता, यानी कि मेरा क्रेडिट 50 हो जाता, और फिर जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट में पे करता वो बैलेंस 50 करता। सो 50 + 30 अगेन 80, तो 80,000 मैंने कैश में तब भी पे किया था, आज भी पे किया है। तो जो मेयरली एक गलती है वो GSTR 3B में आपने सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं की है। फॉर दैट फॉल्ट अ डिमांड कैन नॉट बी कंफर्म्ड अपॉन यू बिकॉज द सिचुएशन इज रेवेन्यू न्यूट्रल। तो इस तरीके से RCM के केसेस को आप एड्रेस कर सकते हैं कि भाई आई हैव नॉट कॉज्ड एनी फाइनेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट, जो मेरे को टैक्स तब पे करना था वो आज पे करना है, उसका क्रेडिट मिल जाता मुझे, तो डिमांड इज नॉट लायबल टू बी सस्टेन्ड।
कोई इंटरेस्ट इंप्लीकेशन नहीं बनती है। अगर मैं पे भी कर रहा हूं आज की डेट में मान करके और क्रेडिट अब ले लूंगा तो इंटरेस्ट इंप्लीकेशन भी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी उतना ही कैश पे किया है जो आज पे करूंगा। So these are certain implications in case of RCM. Then there are hundreds of judgment in case of RCM which say that on grounds of revenue neutrality, the demand extended period cannot be invoked. तो आप ये भी प्लीड कर सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंट एक्सटेंडेड पीरियड के अंडर, मतलब जो हम थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, सेक्शन 74 में अगर डिमांड कंफर्म कर रहा है डिपार्टमेंट, नॉर्मल पीरियड ऑलरेडी टाइम बार हो चुका है, इन दोस केसेस the demand cannot be confirmed because it was revenue neutral. There cannot be any allegation of fraudulent intention. जहां पे मेरे को क्रेडिट मिलना था, डिपार्टमेंट ये थोड़ी कह सकता है कि मेरी इंटेंशन टू एवेड थी उसे ना पे करके. So these are few aspects when we talk about RCM liabilities. Then transaction with related parties, ये मेरे notes to financial statements में आती है. Corporate guarantee दी है. So there is a group company which has given corporate guarantee to another group company. There is no consideration. But the first company holds more than 20% stake in the other company. The related parties hai, control hai, ownership hai. So in those cases, even without consideration, they are deemed as supply between related persons liable to tax. But क्या ये supply है? Whether that company who has given the corporate guarantee to the bank to give the other company the loan for the purpose of borrowing the money, whether the company is in the business of giving guarantees, ये भी एक question है, ये भी एक argument है कि that company is not in the business of giving guarantees. उसको अपना as an investor interest protect करना है, इसलिए वो आगे गारंटी दे रही है, वो उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्प नहीं करेगा. So in those cases we can even say that it is not a supply because it is not in the course of business. But yes, अगर क्रेडिट मिलता है, then I am always having Rule 28 second proviso. I can raise a bill of a nominal amount and department cannot object because the case is revenue neutral. मैं जो यहाँ टैक्स पे करूंगा सामने वाली कंपनी वो क्रेडिट पे कर ले लेगी. तो इन सच सिचुएशंस जहां पे सामने वाली एंटिटी को क्रेडिट मिलता है, वो टैक्सेबल बिजनेस में आगे, तो वहां पे हमें लिटिगेशन ना बाय करके इस तरीके से इनवॉइसिंग करके ड्यू टैक्स पे कर देना चाहिए और उधर क्रेडिट ले लेना चाहिए. Then reverse charge I have discussed. Refunds, department can verify whether the what is the correctness of the claim, supporting documents, etc. Import ocean freights. This is also, I'm short of time basically. Otherwise, I would have explained this in detail. Import ocean freights. Mohit Minerals, Gujarat High Court says that बेसिकली अगर CIF में इंपोर्ट कर रहा हूं तो जो ओशन फ्रेट है और नोटिफिकेशन 13/2017 IGST ने जो मेरे पे डीम कर रखा है एज एन इंपोर्टर, आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस इंपोर्ट ओशन फ्रेट, ये नोटिफिकेशन अल्ट्रा वायरस है टू दैट एक्सटेंट और मैटर अभी पेंडिंग है बिफोर सुप्रीम कोर्ट. अगर मेरे को लास्ट में टाइम मिलेगा तो आई विल डिस्कस इन दिस इन डिटेल इफ एनीवन वांट्स. देन रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के केसेस में एक्सटेंडेड पीरियड नहीं इन्वोक हो सकता, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांजिशनल इश्यूज, डिपार्टमेंट ट्रांजिशनल क्रेडिट को भी वेरीफाई कर सकता है व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट. या तो आपकी रिटर्न का क्लोजिंग बैलेंस था जो आपने ट्रान 1 में कैरी फॉरवर्ड किया था, या फिर कुछ केसेस में जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस क्रेडिट दिया गया था अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3, 4 एंड सो ऑन, तो वहां पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर सकता है. प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, वेदर आपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं. अगर नहीं किए हैं लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं है तो डिपार्टमेंट जनरल पेनल्टी इन्वोक कर सकता है अंडर 125 व्हिच इज मैक्सिमम 50,000. 50. अब कुछ एक दो इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा. वेदर एनी टैक्स लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेबल अंडर द ऑडिट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट कस्टमर. अगर 2022-23 में आपका ऑडिट होता है तो और 17-18 में आपने एक सप्लाई की थी जिसपे टैक्स नहीं पे किया था, आपका अंडरस्टैंडिंग थी कि वो अभी एग्जेम्प्ट सप्लाई है या फॉर दैट एनी मैटर आपने नहीं टैक्स पे किया, क्या आप कस्टमर से रिकवर करके पे कर सकते हैं? देखिए, these are indirect taxes but the liability is primarily on the supplier. तो डिपार्टमेंट तो सप्लायर के पीछे ही भागेगा और सप्लायर से ही टैक्स मांगेगा. अब ये एक कॉमर्शियल
एंगल है कि आपका जो रेसिपिएंट है वो तैयार है आपको ये टैक्स पे करने के लिए या नहीं. डिपार्टमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड विद इट. बट हाँ, अगर मैं उस सप्लाई का डेबिट नोट आज की रेज में रेज कर दूं, because I had not charged IGST or I had not charged CGST, SGST in that date, और डेबिट नोट आज की डेट में रेज करूं, तो अब सेक्शन 16(4) में डेबिट नोट को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था देन द इनवॉइस. तो मैं जो डेबिट नोट आज की डेट में जीएसटी चार्ज करूंगा वो उसका क्रेडिट ले पाएगा अगर मैं प्रायर टू दी शो कॉज नोटिस ही ये डिमांड पे कर देता हूं. अगर डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस कर देता है अंडर सेक्शन 74 तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 75 में ये कहता है लॉ कि 74 की प्रोसीडिंग्स के अंडर आपने कोई अगर टैक्स पे किया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो अगर मैं शो कॉज नोटिस से पहले ही, जब डिपार्टमेंट ऑडिट कर रहा है, मैं कस्टमर्स को डेबिट नोट रेज कर दूं और टैक्स जमा कर दूं, तो रेसिपिएंट कैन क्लेम द क्रेडिट. 2A 2B वाला इशू रहेगा, बट देन दैट कैन ऑलवेज बी कंटेस्टेड. Then whether audit team can seize the goods, assets or any other things during the audit, तो नहीं, वो कोई आपका डॉक्यूमेंट्स या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कुछ भी सीज नहीं कर सकते, कोई स्टॉक आपका सीज नहीं कर सकते. ये पावर सेक्शन 65 में नहीं है, ऑडिट की पावर में नहीं है. वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स and cash can be carried out? No, there is no such power under section 65 to verify the stocks or to verify the cash. They only have the power to verify the documents and records which are being maintained by you. Yes, there is a judgment by the Kerala High Court which says that if during the course of audit department has reasons to believe that the person is particularly suppressing the transaction or he has secreted any goods or services, अगर उनका suspect एक ऐसा बन जाता है during the course of audit that there is some hanky-panky going on, then they can even initiate search simultaneously. Can audit be carried out at the residence of a taxpayer? No. Residence पे audit नहीं हो सकता, place of business या फिर department का office. Approach to departmental audit, this is very nothing any legal or intellect that is required. ये मैं PPT share कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं. If there are certain queries, I would first like to address this and then I will briefly introduce you with adjudication, जो कि important है. तो मैं कुछ chat box में queries देख रहा हूँ. इसके अलावा अगर if anyone wants to basically unmute and ask directly a query. Ankit ji, good evening. I can see your presence. Then, sir, if RCM paid in excess versus liability, is credit can be questioned during departmental audit. देखिए, section 16(1) says you can claim the credit of input tax charged. It does not say कि वो सही चार्ज है या गलत चार्ज है. जो चार्ज किया है और ऐसी सप्लाई के अगेंस्ट चार्ज किया है जो कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए यूज हो रही है. तो अगर सप्लाई पे 12% लगना था लेकिन उसने 18% चार्ज किया है, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा. सेम गोज विद आरसीएम. अगर आपने 12 का 18 अगर पे कर दिया है तो उस पे आपको 18% का क्रेडिट मिल जाएगा. देयर इज नो इश्यू इन माय व्यू. एक क्वेरी और है, आई विल टेक इट अप, डोंट वरी आरसीएम ऑन इंपोर्ट फ्रेट. अच्छा ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे. सर, हु विल डिफाइन द टैक्स रेट ऑन प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर? Sir, classification is always the prerogative of the supplier. अब मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहा है, बट जब ट्रेडर आगे सप्लाई कर रहा है सप्लाई चेन में, तो एज अ सप्लायर उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो टैक्स रेट को प्रॉपरली असर्टेन करे. वो ये नहीं कह सकता कल को कि क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर रेट पे मुझे सप्लाई कर रहा था तो मैं आगे इसलिए उस रेट पे सप्लाई कर रहा था. Even if product is same, so as a supplier you have equal responsibility. आप ये नहीं कह सकते कि मैन्युफैक्चरर की गलती थी. As a supplier you are responsible to classify your product properly. RCM on personal guarantee given to banks for taking loan. Sir, personal guarantee as such, I guess you are saying कि डायरेक्टर एक कंपनी के लिए अपनी कंपनी के लिए गारंटी दे रहा है. तो मेरा यही व्यू है कि वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द डायरेक्टर नहीं है. डायरेक्टर का बिजनेस नहीं है गारंटी देना, इसलिए वो सप्लाई नहीं है और टैक्स नहीं लगना चाहिए. ओके सर, बट इफ पेड ऑन एक्सपेंसेस नॉट लायबल टू आरसी. फिपिन जी की क्वेरी,
सर if RCM if paid on expenses then not liable to if paid on विपिन जी आप एक बार अनम्यूट करके अपनी क्वेरी पूछेंगे if paid on expenses यस सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए सर क्वेरी ये है कि जैसे आरसीएम पेड कर दिया है और हेलो ESIPF एक एक्सपेंसेस था जिसमें आरसीएम पेमेंट हो गया था। सर मैं जो समझ पाया RCM एक्सेस पे हो गया आप कहना चाह रहे हैं एक्सेस पे हो गया है ऑन एक्सपेंसेस ऑफ प्रोविडेंट फंड, गलती से ओके किसी अकाउंटेंट ने पेड कर दिया था। हम्म। तो जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज पे RCM एप्लीकेबल ही नहीं था उस पे मैंने यस पे यस कर दिया है यस सर आप यस। क्रेडिट ले सकते हैं उसका आपके पास दोनों ऑप्शन हैं आप रिफंड जा करके ले सकते हैं बट ओके रिफंड कोई एडवाइस नहीं करता है अमाउंट भी मेरे अकॉर्डिंग कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए और जैसा कि आपको हम कहते हैं कि रिफंड में आपको तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ता है तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप जी क्रेडिट ले लें कोई इशू नहीं होना चाहिए श्योर, जी थैंक यू आफ्टर सर। ऑल इट वाज योर मनी यू हैव पेड इट यू कैन क्लेम द क्रेडिट जी श्योर, थैंक यू सर। ओके हेलो। हाँ जी या सॉरी सर, मैं आपसे दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु विल डिफाइन द टैक्स रेट ऑन प्रोडक्ट, सर उस पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते कि ऑलवेज द मैन्युफैक्चरर इज ऑथराइज्ड टू डिफाइन द रेट। अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई रेट डिफाइन कर दिया, ट्रेडर इज बाउंड टू सेट द सेम रेट ऑन प्रोडक्ट। सर अब ये देखना पड़ेगा कि किस हालांकि अगर इस तरीके से जजमेंट है तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप मेरे से शेयर करें आई एम नॉट अवेयर ऑफ सच अ जजमेंट जो मैंने जजमेंट्स पढ़े हैं वहां पे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ही हैं कि क्लासिफिकेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सप्लायर तो रेसिपिएंट कैन नॉट डू दी क्लासिफिकेशन बट मेरा ये कहना है कि एज अ ट्रेडर जब आप आगे सप्लाई कर रहे हैं तब आपकी भी वो लाइबिलिटी है असेस करने की कि क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल है क्या क्लासिफिकेशन है तो सपोज दैट एक आप जो प्रोडक्ट, हाँ जी हाँ सॉरी, हाँ मैं समझ गया वो एक प्रोडक्ट है तभी ट्रेडर है तो अकॉर्डिंग टू मी आई एम इक्वली लायबल क्योंकि डिपार्टमेंट कल को ये कह सकता है कि एज अ सप्लायर आपकी ये आउट टैक्स लायबिलिटी आपने शॉर्ट टैक्स पे किया है उसको वो कैसे रिकवर करेगा एग्जैक्टली। ठीक है उसमें एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाकर के ये भी ये कह सकते हैं कि भाई रेवेन्यू न्यूट्रल होता मैं जो टैक्स पे करता वो आगे क्रेडिट ले लेता लेकिन ये ट्रिब्यूनल तक तो ये एस्पेक्ट को नहीं कवर अप करते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि लॉ एडमिनिस्टर नहीं हो पाएगा हालांकि B2B ट्रांजैक्शन में पूरी ट्रांजैक्शन रेवेन्यू न्यूट्रल है मैं जो टैक्स पे करूंगा मैन्युफैक्चरर जो पे करेगा उसका ट्रेडर को क्रेडिट मिल जाएगा ट्रेडर अगर आगे रिटेलर को बेचता है है तो उधर क्रेडिट मिल जाएगा अल्टीमेटली तो जो कस्टमर से रिकवर होगा वहीं पे टैक्स मिलेगा तो ये आर्ग्यूमेंट्स आगे लिए जा सकते हैं और आप जो जजमेंट कह रहे हैं अगर उसका भी बेनिफिट हम वी कैन टेक श्योर, परफेक्ट सर, थैंक यू सर। ओके there is a query RCM on personal guarantee given to banks for taking loan सर ये आपका इशू आ रहा है कि डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दिया है तो गारंटी दी है तो वेदर इट इज लायबल टू RCM और नॉट इन माय कंसिडरेट व्यू डायरेक्टर के केसेस में कंपनी के ऊपर RCM की लाइबिलिटी तब आएगी व्हेन ही इज डूइंग एनी एक्टिविटी एज अ डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर फॉर एग्जांपल एक अलग एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि डायरेक्टर ने कंपनी को अपनी एक प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया तो क्या कंपनी को इस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स देने की जरूरत है इन माय हम्बल ओपिनियन नो डायरेक्टर एक प्रोफेशनल है उसने इन प्रोफेशनल कैपेसिटी कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज दी तो क्या वो RCM पे एप्लीकेबल कंपनी के एंड्स में इन माय व्यू नो बिकॉज ही इज गिविंग दैट those services in his professional capacity in his personal capacity as a director जो सिटिंग फीस है जो वो कंपनी के लिए ओवरऑल अफेयर्स को मैनेज कर रहा है उसी पे केवल RCM आना चाहिए सर्विस टैक्स में तो ये सेटल्ड था वहां थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी थी वहां पे वो लिखते थे कि इन दी कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर बट GST में थोड़ा सा वो उन्होंने सीधा ये कह दिया कि बाय अ डायरेक्टर टू अ कंपनी रिवर्स चार्ज बट व्हेन दे आर राइटिंग डायरेक्टर देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ओनली और फिर RCM पर्सनल गारंटी है तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो सप्लाई से बाहर है इसलिए टैक्स नहीं लगेगा
If I am builder, then I take input or not. Sir, if you are builder, अगर आप रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो 1/4/19 के बाद जो स्कीम है उस पे आप पे कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है 5% इन केस ऑफ नॉन अफोर्डेबल कैटेगरी, 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल कैटेगरी। वहां पे आपको कोई इनपुट नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपका कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे आउटपुट भी 12% है और क्रेडिट भी आपको सारा मिलेगा। कैन यू प्लीज डिस्कस सेक्शन 16(4)? सर, सेक्शन 16(4) सेज कि किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में आप क्रेडिट ले सकते हैं अप टू सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जिसको अब उन्होंने टाइम लिमिट एक्सटेंड करके नवंबर कर दिया है इन फाइनेंस एक्ट 2022, येट टू बी नोटिफाइड। सो इट सेज कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो इनवॉइस इश्यू हुआ है या अगर डेबिट नोट है, तो टैक्स इनवॉइस की डेट और डेबिट नोट की डेट से जिस ईयर को वो पर्टेन करता है उसके फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में जो सितंबर आएगा, वहां उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल हो रही है तो वो गलत है। आपको ड्यू डेट तक वो क्रेडिट अवेल करना है। बट यहाँ पे मेरा एक सबमिशन है कि क्रेडिट अवेल कब माना जाएगा? जब मैं रिटर्न में डिक्लेयर कर दूंगा 3B में और वो क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, या बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट लेना ही क्रेडिट माना जाएगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट अवेल करूंगा वो ही डेट मेरी डेट ऑफ अवेलमेंट मानी जानी चाहिए। एंड 3B इज मेयरली अ रिप्रेजेंटेशन, अ डिक्लेरेशन टू द डिपार्टमेंट। बट अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट को अवेल कर लेता हूं देन दैट इज सफाइस। इस पे सर्विस टैक्स में एक सीस्टैट का जजमेंट भी है जहां पे उन्होंने कहा कि मेयर फेलियर टू डिक्लेयर द क्रेडिट इन रिटर्न कैन नॉट डिनाई यू द क्रेडिट इफ यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड दैट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। Anyone else, any query? चैट बॉक्स में अब क्वेरी नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे एजुकेशन के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेता हूं आपसे। देखिए, अब जो आपका ऑडिट हो गया, जो फाइंडिंग्स डिपार्टमेंट ने फाइनलाइज कर दी हैं, या तो आप उसे पे कर देंगे जो अग्रीड डिमांड्स हैं, जो आपको लगता है कि भाई ये लेजिटिमेट डिमांड है, दैट यू कैन पे along with interest and the proceedings will be deemed to be concluded. बट जिन लाइबिलिटीज को आप कंटेस्ट करना चाहते हैं वहां पे आप अपना ब्रीफ सबमिशन इन रिस्पॉन्स टू ऑडिट मेमो दे एंड यू सबमिट दैट आई हैव टू कंटेस्ट द केस। तो डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस सर्व करेगा, कोई रिकवरी नहीं कर सकता डिपार्टमेंट। शो कॉज नोटिस सर्व करेगा, आपको शो कॉज का रिप्लाई करना है और डिपार्टमेंट डिमांड को या तो आपका सबमिशन कंसिडर करके ड्रॉप कर देगा या डिमांड कंफर्म कर देगा। एट दैट वेरी स्टेज जब डिमांड वो ऑर्डर इन ओरिजिनल इशू करेगा विच इज कॉल्ड एज एजुडिकेशन ऑर्डर, तब आपकी डिमांड कंफर्म होती है और उसके बाद आपके पास अपीलेट रेमेडीज स्टार्ट हो जाती हैं अंडर सेक्शन 107। आप कमिश्नर अपील के पास उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं बाय डिपॉजिटिंग 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट। आई एम रिपीटिंग, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के रिस्पेक्ट में आपको कुछ नहीं जमा करना होता है, केवल टैक्स का 10% आपको जमा करना है। इसी तरीके से अगर आप कमिश्नर अपील के ऑर्डर से भी अग्रीव्ड हैं, अब मैं कमिश्नर अपील के वर्ड को रेक्टिफाई करूंगा, अपीलेट अथॉरिटी, क्योंकि जीएसटी में 2 अपीलेट अथॉरिटी हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी 2 हैं, एक ज्वाइंट कमिश्नर अपील और एक कमिश्नर अपील। अगर ऑर्डर में डिमांड 2 करोड़ से ऊपर है तो एजुडिकेशन ऑर्डर पास करता है एडीसी या जेसी, जिसकी अपील सुनता है कमिश्नर अपील। लेकिन अगर ऑर्डर में डिमांड 2 करोड़ से नीचे है तो वो ऑर्डर पास होता है बाय एसीडीसी, जिसकी अपील सुनता है जेसी अपील या एडीसी अपील। और ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद डायरेक्टली अपील लाई करती है बिफोर द ट्रिब्यूनल, जिसमें आपको 20% एडिशनल पे करना होता है ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट और बाकी अमाउंट ऑटोमेटिकली स्टे हो जाती है, योर अपील लाइज बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो ये एक लिटिगेशन मैट्रिक्स है, अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल, एंड देन यू हैव द recourse ऑफ हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे अब जो मेन एक एस्पेक्ट आता है एजुडिकेशन को लेकर के, वो शो कॉज नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं उस पे टाइम बारेंगे एंड फर्दर एजुडिकेशन पे भी टाइम बारेंगे, मतलब ऑर्डर इन ओरिजिनल जो इशू होगा उस पे टाइम बारेंगे है। डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट करता रहे, असेसमेंट करता रहे, कोई भी सर्च एंड सीजर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे, इट फर्स्ट हैज टू कल्मिनेट इनटू अ शो कॉज नोटिस। डिपार्टमेंट को ये शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा कोई भी डिमांड को प्रपोज करने के लिए।
आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, एंड देन डिपार्टमेंट को डिमांड कंफर्म करनी होगी एजुडिकेशन ऑर्डर इशू करके। अब इस पे टाइम बारिंग है। 17-18 का अगर कोई भी डिपार्टमेंट डिमांड प्रपोज करना चाहता है तो लॉ सेज अंडर सेक्शन 73 जहां पे बोनाफाइड केस है, वहां पे डिपार्टमेंट डिमांड को एजुडिकेट यानी कि कंफर्म कर सकता है अंडर ऑर्डर इन ओरिजिनल विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। हमारी 17-18 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी? 31 जनवरी 2020। तो डिपार्टमेंट को डिमांड इस पीरियड की कब तक कंफर्म करनी है? ऑर्डर इन ओरिजिनल के अंडर 30 जनवरी 2023 तक, और शो कॉज उसे मिनिमम 3 महीने पहले करना है उससे, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक। अगर 30 नवंबर 2022 की डेट निकल जाती है और डिपार्टमेंट शो कॉज नहीं कर पाता है या उसका एजुडिकेशन 31 जनवरी 2023 तक नहीं कर पाता है तो डिमांड टाइम बार है, फिर ऑडिट चाहे कुछ भी किया हो डिपार्टमेंट ने। लेकिन अब क्या है कि डिपार्टमेंट कोई भी डिमांड जब भी निकालता है, चाहे मेयर वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को असेस करे और ये देखे कि भाई आपने इतना अमाउंट शॉर्ट पे किया है, तो वो हमेशा एलिगेशन ऑफ फ्रॉड लगाता है, वो हमेशा विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स लगाएगा, हमेशा ये कहेगा कि देयर इज डेलिबरेट इंटेंशन टू इवेड टैक्स, और सेक्शन 74 को इन्वोक करना चाहेगा, जैसे कि सर्विस टैक्स में प्रोवाइजो टू सेक्शन 73 को इन्वोक करते थे और एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट लेते थे, वहां पे 5 साल मिलते हैं। तो डिपार्टमेंट जो भी आपके ऑडिट कर रहा है उस केसेस में 17-18 के केस में 74 इन्वोक करके वो आपकी डिमांड एजुडिकेट कर सकता है 30 जनवरी 2025 तक, और उसका शो कॉज उसे मिनिमम 6 महीने पहले करना है, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक। तो इस तरीके से ये ड्यू डेट्स हैं जो कि 73-74 में है। मैं इसको आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूं फॉर, या मैं आपको पीपीटी जब शेयर करूंगा तो उसमें वो ड्यू डेट्स मेंशन्ड है। तो अब इसमें एज अ प्रोफेशनल मेरी रिक्वायरमेंट क्या आती है कि मैं अपने केस को किस तरीके से 74 से बाहर निकाल दूं, कि भाई मेरे केस में विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं थी या डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। 3 ही केसेस हैं जिसमें 74 इन्वोक हो सकता है, जहां पे कि फ्रॉड का एलिगेशन हो या विलफुल सप्रेशन का एलिगेशन हो बाय द डिपार्टमेंट कि भाई इन्होंने ट्रांजैक्शन हमसे सप्रेस करी, और या मिस रिप्रेजेंटेशन हो डेलिबरेट विद एन इंटेंट टू एवेड टैक्स। So there are settled judgments, multiple judgments, wherein the courts have held that mere identification of non-payment by the department during the course of audit cannot automatically be said to as fraudulent intention to evade tax. या अगर असेसी ने कोई चीज रिटर्न में अपनी नहीं डिक्लेयर करी तो mere failure to declare that thing in the return cannot be said to be willful suppression or deliberate misrepresentation. Department has to establish a positive act on part of the assessee, has to establish a cogent evidence against the assessee which proves that there is a deliberate intention to evade tax. तो डिपार्टमेंट के ऊपर ओनस है ये प्रूव करने के लिए कि भाई असेसी फ्रॉड करना चाहता था, इसलिए उसने ये टैक्स का इवेजन किया, इसलिए हम 74 इन्वोक कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक्सटेंडेड पीरियड की जो डिमांड होती है वो कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट कोई मेहनत नहीं करता, वो केवल ये कहता है कि हम आए, हमने ऑडिट किया और इस वजह से डिमांड निकली, तो ये सेक्शन 74 एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक होना चाहिए, विच इज ब्लेटेंटली रॉन्ग एज पर दी कोर्ट्स सेटल्ड जजमेंट्स, नंबर ऑफ जजमेंट्स। इस तरीके से एज प्रोफेशनल वी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ क्लाइंट कि भाई एक्सटेंडेड पीरियड नहीं लगता, और एक्सटेंडेड पीरियड में पेनल्टी भी 100% है, तो वो पेनल्टी भी नहीं इंपोज होती, कोर्ट्स उसे स्ट्रक डाउन करते हैं। सर डेडलाइन ऑफ नवंबर इज रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव? सर ये डेडलाइन प्रोस्पेक्टिव रहेगी जो नवंबर की आपकी अमेंडमेंट की, जो फाइनेंस एक्ट 2022 ने जहां भी अमेंडमेंट प्रपोज करी है नवंबर की, वो सारी अमेंडमेंट्स प्रोस्पेक्टिव हैं और ये अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुई है। जीएसटी में थोड़ा सा हमें समझने वाली बात यह है कि फाइनेंस बिल आता है, फिर उसे प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, बट जैसे कि बाकी सारे लॉज में फाइनेंस एक्ट बनने के दिन ही प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, जीएसटी में काउंसिल एक डेट नोटिफाई करती है। क्यों? क्योंकि एसजीएसटी एक्ट्स में भी अमेंडमेंट होनी है, वो अमेंडमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है। तो जब तक वो सारी अमेंडमेंट्स एसजीएसटी एक्ट्स में नहीं हो जाएंगी और एक सेम फुटिंग पे नहीं आ जाएंगे, सेम पेज पे दोनों लॉ नहीं आ जाएंगे, तब तक काउंसिल डेट नहीं नोटिफाई करेगी, एंड वी कैन
एक्सपेक्ट की काउंसिल इसे नोटिफाई करेगी अराउंड अक्टूबर और फरवरी 2023, अक्टूबर 2022 और फरवरी 2023 एज पर द पास्ट ट्रेंड. If I don't reply to SCN, then what can I do now? सर अगर आपने SCN का रिप्लाई नहीं किया, डिपार्टमेंट ने उसे एजुडिकेट कर दिया, पहले देखने वाली बात यह कि डिपार्टमेंट ने आपको टाइम कितना दिया रिप्लाई करने का. अगर डिपार्टमेंट ने मेयरली 30 डेज दिए और उसके बाद सीधा एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, तो वो ऑर्डर करने से पहले भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी डिपार्टमेंट को. तो और हम कुछ केसेस में क्या देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने आपको तो 30 डेज दिए, लेकिन 30 डेज एक्सपायर होने के बाद डिपार्टमेंट ने खुद 6 महीने लगा दिए और ऑर्डर पास नहीं किया. तो डिपार्टमेंट 6 महीने बाद जब ऑर्डर पास करेगा तब भी उसे मुझे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी फॉर हियरिंग, विच दे डिड नॉट गिव. तो इस तरीके के केसेस में ये केसेस आगे अपील में जाना पड़ेगा अब आपको. अगर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया है SCN का, you have no other option, तो वो रिमांड बैक हो जाता है एंड देन लोअर अथॉरिटी विल कंसिडर योर केस. तो कोई इशू नहीं है, आप उसे एक्सप्लेन करिए अपने फैक्ट्स को अपील में. अगर टाइम निकल गया है और ऑर्डर नहीं पास हुआ है तो अभी भी आप रिप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन लेकर के, एडजर्नमेंट लेकर के. बिकॉज इसमें एक चीज और मैं एडअप करना चाहूंगा कि एजुडिकेशन पर डिपार्टमेंट की जो टाइम बारिंग है 17-18 को लेकर के, वो भी 73 में भी 2023 तक है, और डिपार्टमेंट ने अगर 74 में शो कॉज किया था तो वो तो 2025 तक है. तो कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन नहीं है डिपार्टमेंट पे आज ही ऑर्डर पास करने की. अगर ऑर्डर नहीं पास हुआ है तो आप उनको एक एडजर्नमेंट एक्सटेंशन फाइल करें कि मैं 30 दिन के अंदर अब रिप्लाई फाइल कर दूंगा. एंड इफ इन केस दे हैव ऑलरेडी पास द ऑर्डर, देन यू हैव नो ऑप्शन बट टू फाइल एन अपील बिफोर द हायर अथॉरिटी. So, any other query? So right, I was discussing ये जो extended period और normal period का जो 74 और 73 का distinction है, ये हमें address करना चाहिए. We must read the case laws as professional कि courts ने क्या कहा है, कब 74 invoke हो सकता है. There has to be a deliberate intention on part of an assessee, तभी 74 इन्वोक हो सकता है. मेयरली डिपार्टमेंट आया, डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड निकाल दी, उस केस में 74 इन्वोक नहीं हो सकता है. दूसरा, अगर आप प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस है लॉ में. 73(5) में है कि अगर आप शो कॉज नोटिस से पहले ही अपनी जो अमाउंट डिमांड आप अग्री करते हैं वो पे कर देते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो आपकी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड माना जाएगा. अगर शो कॉज नोटिस हो जाता है और आप 30 दिन के अंदर टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड. हाँ, जैसा कि मैंने कहा, डिपार्टमेंट जनरली 73 नहीं करता है, वो 74 में ही इशू करता है प्रोसीडिंग्स को, 74 में ही शो कॉज नोटिस देता है, क्योंकि उसका हर जगह एलिगेशन होता है कि भाई मैंने पकड़ा है तो ये फ्रॉड का केस है. तो उन केसेस में डिपार्टमेंट, हम शो कॉज नोटिस से पहले अगर प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड कराना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट 15% पेनल्टी भी मांगता है. एज पर 74(5) लॉ भी ये कहता है कि प्रोसीडिंग्स कंक्लूड तभी होंगी जब 15% पेनल्टी पे कर देंगे. अगर आप SCN इशू होने के बाद प्रोसीडिंग को कंक्लूड कराना चाहते हैं तो 30 डेज के अंदर आपके पास टाइम है. आप टैक्स, इंटरेस्ट और 25% ऑफ द पेनल्टी पे करके अंडर सेक्शन 74 अपनी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करा सकते हैं, जब 74 का केस है. अगर आप 30 दिन एक्सपायर हो जाते हैं, इसके बाद आप एजुडिकेशन ऑर्डर के 30 डेज तक 50% पेनल्टी पे करके अपनी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करा सकते हैं, जहां पे डिमांड से आप अग्री करते हैं, आप आगे फर्दर कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं. तो ये रिबेट मिलती है लॉ में 73(5) जहां पे बोनाफाइड केस है, 74(5) जहां पे मैलाफाइड इंटेंशन का केस डिपार्टमेंट ने बनाया है. इस तरीके से. Siddhant ji, I think no other query, यस सर. हाँ जी. and wonderfully you have covered all the topic, all the complicated matter under this audit procedure. If participant have any other query, you can we can put the session. दो ही बातें हो सकती हैं सर, या तो सब चीजें समझ में आ गई हैं या कुछ भी समझ में नहीं आया. सिद्धांत जी,
बिल्कुल सब समझ में आया, क्योंकि आपने इतने सरल भाषा में समझाया आज का टॉपिक जो लिया है। फैंटास्टिक। सो आई प्रिज्यूम कि ऑल every topic has been cleared and wonderfully you have covered and taken all the queries. तो ऐसा नहीं है कि all ऊपर से चला जाए, not possible. मैं एक चीज तो लास्ट में ऐड करना चाहूंगा, जो लिमिटेड जी। पार्टिसिपेंट्स हैं, छोटा सा ब्रीफ जी। में। देखिए, हम जी। ये सब चीजें इसलिए डिस्कस करते हैं, ऑडिट भी जो हमने डिस्कस किया, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी मस्ट एक्सप्लोर दिस प्रैक्टिस। आगे जो आने वाला टाइम है वहां पे कंप्लायंस की प्रैक्टिस नहीं रह जाएगी, बिकॉज इस जो गवर्नमेंट का जो विजन है वो इस सब चीजों को, टेक्नोलॉजी पे इतना रिलायंट है वो, और इतना ज्यादा ऑटोमेट करने वाले हैं कि आपकी जो हम कंप्लायंस की प्रैक्टिस देखते हैं दैट विल बी वेरी लिमिटेड। एंड एज प्रोफेशनल्स वी मस्ट लुक इनटू दिस लिटिगेशन एंड एडवाइजरी कि डिपार्टमेंट क्या कह रहा है और लीगली क्या सही प्रपोजिशन है, और हम किस तरीके से अपने क्लाइंट को एडवाइज कर सकते हैं इस तरीके से। दैट इज इट। नहीं, डेफिनेटली सही कहा सिद्धार्थ जी कि आपने इस समय डिपार्टमेंट जो व्यू चाहता है और हम किस तरह से कंप्लायंस कर रहे हैं, इसमें अगर कोई गैप है तो फिल किया जाए। अदरवाइज प्रॉब्लम हमारे पार्ट पर जो जनरेट हो रही है, जो नोटिसेस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इट विल इंक्रीज in future. राइट। So we have to take care before compliance all these GST and other compliance by the government. So last, Sumit Nanda, thanks for the today deliberation. So with this, we want to conclude the today's session. Thank you very much, Siddhant ji, for your wonderful deliberation. And the recording and the PPT will be shared to each participant who have registered. So with this, we want to conclude. Siddhant ji, thank you very much for your थैंक यू। wonderful presentation. Thank you so much to all participants. Thank you.